It's my great privilege to acknowledge the student of the Jindal Adarsh Gram Bharti Kurmalagar of class 10th board examination, which is going to commence from the 27th of the February and it will run till 21st of the March. The schedule for examination is concerned that 27th of the February, the first paper being the subject of English, and followed by the next day papers on the 4th of the March, then 11th of the March, 13th of the March, 15th of the March, and consequently 21st of the March. And we, the institution of Jindal Adarsh Gram Bharti, really very concerned to student of class 10th, and that's why we thought of to just elaborate some of the specific features regarding to board examination. And we try to just acknowledge the student of class 10th, how they will prepare their own subjects, and after that my staff being the subject concerned, they are just preparing the one of the particular guidelines and instructions for the students who are paying attention for their preparation of the 10th board examination. And it's very, you can say, a very good opportunity for the students who are really very tense and they are worried about their scoring the marks. And teachers are elaborating a nice description, and definitely it will be very beneficial not only for the student of our Jindal Adarsh Gram Bharti school, even the viewers who are watching the YouTube this contents from any of the institutions. This will be very beneficial. And I would like to just give my best blessing to all the examinees. Through this contents, they will be acknowledged, they will be get ideas to how to prepare and how to score the good marks. Really, it is a better opportunity because it's a new concept of things. And ultimately, I would like to place my great thanks to all the teachers for giving the valuable time to making such a nice video and concept behind the given the elaboration of their topics regarding to subjects related. And definitely students also be very light from the temptation and make it very interesting this content to prepare the subjects, and definitely they will go to score the highest marks. And ultimately I would like to place my best wishes to all the examinees for this coming board examination, which is going to commence from the 27th to 21st of the March. Thank you and may God bless you. आवश्यक सूचना, जैसे कि आप सब अवगत हैं, आने वाली 27 फरवरी से आप सभी की CBSE बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है, जिसकी समय सारणी आप सभी को लिखित तथा मौखिक रूप से बता दिया गया है, जिसमें दिनांक 27 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक 23 दिनों के मध्य अंतर आपकी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। आप सभी को हर विषय के अंतराल में कुछ दिनों का अध्ययन अंतराल दिवस दिया गया है, जिसमें संस्कृत विषय में 7 दिन और सामाजिक अध्ययन में मात्र 1 दिन का अंतराल देखने को मिलता है। यह एक विचारणीय विषय क्योंकि संस्कृत व सामाजिक अध्ययन दोनों विषयों का जो अंतराल दिवस है वह विषय अनुगत सही आवंटन की दृष्टि से आपके अध्ययन के लिए समस्यागत हो सकता है। हमारा आपसे इस विषय में यह मार्गदर्शन है कि आप सभी संस्कृत विषय के 7 दिनों में से कम 3 दिन सामाजिक अध्ययन के लिए निकालें, ताकि आपको समय की कमी न आए और आप उचित दिनों का आवंटन कर सामाजिक अध्ययन के लिए पर्याप्त समय और दिनांकों का लाभ उठा सकें। जैसा कि आपको अवगत है, 27 फरवरी को आप लोगों की इंग्लिश की वार्षिक परीक्षा होने वाली है। 4 मार्च को साइंस, 11 मार्च को संस्कृत, 13 मार्च IT, 15 मार्च SST, अंत में 21 मार्च मैथ्स की परीक्षा होने वाली है। इन सभी परीक्षाओं के दौरान अध्ययन अंतराल दिवस दिया गया है। आज 24 फरवरी है और आप सभी की इंग्लिश की परीक्षा 27 फरवरी को है। 24 से 27 के बीच आपके पास 3 दिनों का अध्ययन अंतराल है। इन 3 दिनों में आपको अपने इंग्लिश विषय की परीक्षा के लिए कैसी तैयारी करना है वो आपको हर्षा मैम विस्तार से बताएंगे। Good morning everyone. So today I will tell you the preparation strategy of English subject, how to cover the syllabus in 3 days. Your date of the exam is 27 Feb 2023 and the time of the exam is 10 AM to 1:30 PM. And marks allotted for the subject is 80 marks. Subject code is 184. तो सबसे पहले हमारे पास अभी बचे थे सिर्फ 3 दिन, वो है 24 फेब, 25 फेब एंड 26 फेब। तो इन 3 दिनों में हमें अपना सिलेबस डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए 24 फेब को सेक्शन C, जो कि बहुत ही ज्यादा वेटेज पे दिया गया है,
वो है लिटरेचर सेक्शन, जो कि है 40 मार्क्स के लिए। तो उसके लिए आपको 2 बुक्स है, एक प्रोज है दैट इज फर्स्ट फ्राइट जिसमें 9 चैप्टर्स है, और पोयम 10 पोयम इंक्लूडेड इन दैट पोयम, एंड फुटप्रिंट विदाउट फिट, इसमें आपके 9 चैप्टर्स कवर करने हैं आपको। तो इस चैप्टर्स को, पोएम्स को आप 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए, और मीन्स अगर 3 चैप्टर्स फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट, देन 3 पोएम्स एंड 3 चैप्टर्स फ्रॉम द फुटप्रिंट, इसको आप सुबह 4 बजे से 7 बजे के टाइम में मॉर्निंग में उठकर इसकी समरी, इसके ऑथर, इसके पोएट को अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद 7 to 8 आप ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद 9 to 12 आप अगेन बचे हुए नेक्स्ट 3 चैप्टर से, 3 पोएम से उसको पढ़ेंगे। उसके बाद अगेन आप 12 to 1 ब्रेक लेकर नेक्स्ट चैप्टर जो आपके बचे हुए हैं उसकी समरी को कवर करेंगे। समरी को कंप्लीट आपने पढ़ लिया है तो आपको एक आइडिया आ गया है लेसन्स में क्या है, पोएम में क्या है, और उसके बाद आप उसके जो क्वेश्चंस है उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे 25th Feb सैटरडे को सेक्शन बी दैट इज द ग्रामर एंड राइटिंग क्वेश्चन विच इज फॉर 20 मार्क्स। इसके लिए आपको ग्रामर में एरर करेक्शन जो आएगा, उसके लिए आपको जो भी सेंटेंसेस है उसको लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एरर करेक्शन फाइंड आउट करने पड़ेंगे सेंटेंस में से, तो उसके लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप कुछ सेंटेंसेस अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा हाउ टू सॉल्व इट। उसके बाद प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग स्किल, उसके लिए प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस है उनको आप एक बार टैली करेंगे, देखेंगे, और उन क्वेश्चंस को एक बार लिख कर देखेंगे। और फॉर्मेट जो है राइटिंग स्किल में, उस फॉर्मेट में प्रॉपर आंसर्स लिखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद जो भी समय आपके पास बचता है दोपहर का बाद का, उसमें आपके पहले के दिन के जो चैप्टर्स या पोएम होना बाकी है उसको आप कवर कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चंस है लेसन्स के उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे है 26th दैट इज संडे। ऑन दैट डे यू हैव टू प्रिपेयर द सेक्शन ए। सेक्शन ए कम्स फॉर 20 मार्क्स। 20 मार्क्स के लिए आपको अनसीन पैसेज जो आएंगे उसको अच्छे से थोरोली यू हैव टू रीड दिस पैसेज एंड ट्राई टू सॉल्व द आंसर्स फ्रॉम द गिवन पैसेज। उसके लिए आपको पैसेजेस प्रिफर करने हैं, तो जो भी क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस ईयर की उसको आपको आपके मोबाइल में आपको मिल जाएंगे। उसके लिए मैंने आपको ये लिंक दी है, वो है https://www.educart.com.co। इसके ऊपर आप क्लिक करिएगा तो आपको क्लास 10 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स बैंक CBSE PDF ये मिलेगा। इसको आप ओपन करिएगा और उसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है वो मिल जाएंगे। उनमें जितने भी क्वेश्चंस है उसको आप रिवाइज करिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद मेरी कुछ टिप्स हैं आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे से मार्क्स लाने के लिए। वो टिप्स ये है कि जो भी टाइम टेबल आपने बनाया है उस टाइम टेबल को थोरोली फॉलो करिएगा। डोंट डू एनी अमेंडमेंट्स इन दैट। उसके बाद जो भी टाइम आप दे रहे हो वो वेटेज जो मार्क्स जितना जिसके ऊपर ज्यादा है पहले वो ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस को पहले प्रिपेयर करेंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू व्हेन यू राइट और रीड द समरी, जब आप लेसन की समरी रीड कर रहे हैं या क्वेश्चंस को रीड कर रहे हैं उस टाइम आप रिकॉर्डिंग ऑन करिएगा मोबाइल की। और जब आप ब्रेक ले रहे हैं या थोड़ा स्नैप ले रहे हैं कुछ टाइम के लिए तो उस टाइम आप उस रिकॉर्डिंग को ऑन करिएगा तो आपका थोड़ा रिवीजन उस टाइम भी हो जाएगा। उसके बाद यू हैव टू यूज ऑनलाइन वीडियोज फॉर हेल्प। समरी को पढ़ने के लिए आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट वीडियोस हैं नेट पे अवेलेबल, उसको आप पढ़ सकते हैं। बट ये भी करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप मोबाइल यूज करेंगे आपके मोबाइल के नोटिफिकेशंस ऑफ रखेंगे ताकि आपके पढ़ाई में कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं आए। उसके बाद जो भी ग्रामर दिया है एरर करेक्शन, उसके लिए आपको सारे रूल्स ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं उनको प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना है आपको वो, और उसके हिसाब से आपको ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस तरह से कुछ ही दिनों में आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं
बस आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा और अपना समय प्रॉपर पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। 27 फरवरी इंग्लिश की परीक्षा देने के बाद भोजन और विश्राम के बाद शाम 5 बजे से आप अपनी अगली परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें, जो कि साइंस की है। साइंस की परीक्षा के लिए आपके पास 4 दिनों का अंतराल दिवस है। इन अंतराल दिवस में आपको कैसी तैयारी करना है, यह आपको जयनारायण सर और अभिषेक सर विस्तार से बताएंगे। Morning students, this is Abhishek Singh, your science teacher. Here I am going to discuss strategy for science subject during exam gaps. जैसा कि हम लोगों को 4 दिन का गैप मिला हुआ है साइंस सब्जेक्ट के लिए, और साइंस सब्जेक्ट के जो एग्जाम है वो 4 मार्च को होना है। 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च। 28 फरवरी को क्या करना है, मॉर्निंग में उठना है, जो भी आपका टाइम शेड्यूल है। सबसे पहले 3 घंटे के लिए आपको सैंपल पेपर प्रिपरेशन करना है। उसके बाद 1 घंटे के लिए उस सैंपल पेपर में अगर कोई करेक्शन करना है, आपका आंसर राइटिंग है, उस पर अगर कोई गलत आंसर राइटिंग हो गया उसको करेक्ट करना है, तो 1 आवर में उसको पहले करेक्ट करेंगे। उसके बाद 2 आवर का 2 आवर्स का रेस्ट लेना है प्रॉपर। उसके बाद जो सबसे छोटा चैप्टर है केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो लगभग 1 आवर का है, पहले उसको प्रिपेयर कर लेना है। 1 आवर में प्रिपेयर करने के बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं, वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 1 आवर में उसके प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद प्रॉपर फिर से 2 आवर का रेस्ट लेना है, और उसके बाद जितने डेरिवेशन है साइंस में वो कर लेना है। जनरली इस साल जो आने के चांसेस है डेरिवेशन में, वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, जिसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। टोटल रेजिस्टेंस में 2 डेरिवेशन आ सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में। उसके बाद नेक्स्ट डे 1 मार्च में आपको कोई भी 2 चैप्टर केमिस्ट्री के अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, और कोई भी 2 चैप्टर फिजिक्स के अपने कंफर्टेबल के हिसाब से कर लेना है। एनी 4 चैप्टर्स 1 मार्च को आपको प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद उनका रिवीजन इवनिंग शाम होते होते तक आपको उसका रिवीजन भी कर लेना है। रिवीजन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी को एक बार पूरा रिवाइज कर लेना है, और साथ में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो किसी भी सैंपल पेपर से आप कर सकते हैं। वो करने के बाद ये वाले डे का प्रिपरेशन लगभग हो जाएगा। 2 मार्च में आपको क्या करना है, एक चैप्टर केमिस्ट्री का सिर्फ बचेगा, उस एक चैप्टर को 2 मार्च से प्रिपेयर कर लेना है, और साथ में जो फिजिक्स के 2 चैप्टर बचेंगे उसको भी आपको 2 मार्च से प्रिपेयर कर लेना है। शाम होने तक आपको प्रॉपर एनसीईआरटी को रिवाइज कर लेना है, और फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लगा लेने हैं, चाहे किसी सैंपल पेपर से, चाहे जो भी आपका सोर्स हो क्वेश्चन करने का वहां से। 3 मार्च में जो भी आपके सैंपल पेपर बच गए हैं, जो कि 28 फरवरी को हुए थे, तो पूरे के पूरे सैंपल पेपर 3 घंटे में होने पॉसिबल नहीं थे। जो सैंपल पेपर बच गए थे 28 फरवरी को, उनको 3 मार्च में आपको कंप्लीट कर लेना है, रिमेनिंग सैंपल पेपर को। उसके बाद फिजिक्स से जहां न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, उसको भी आपको लास्ट में 3 मार्च को प्रिपेयर करना है। जैसे न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, लाइट चैप्टर से कंफर्म क्वेश्चन रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से कंफर्म क्वेश्चन रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से पावर वाले सेक्शन के न्यूमेरिकल को कर ही लेना है, क्योंकि हर साल ये पूछा जाता है इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड। और लाइट चैप्टर में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, इमेज डिस्टेंस V है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए ये कंफर्म क्वेश्चन रहता है हर साल। ये करने के बाद थर्ड चीज आपको क्या करना है, 3 मार्च में केस बेस्ड क्वेश्चन जितने भी आपके सोर्स होंगे, जहां से भी सैंपल पेपर एडू कार्ड किया जो भी हो, वहां से कर लेना है। स्पाइनल कॉर्ड, नर्व से और रिफ्लेक्स सेक्शन बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आपको करने, सिंपल क्वेश्चंस को। देन केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसके सीक्रेशन एंड फंक्शन, प्लांट हार्मोन्स एंड प्लांट मूवमेंट, ये जो टॉपिक है ये आपको हार्डली 1 आवर से लेकर 2 आवर के बीच में आपको कंप्लीट करना है। याद रखेंगे यहाँ पर भी एनसीईआरटी आपको बहुत मदद करने वाली है। एनसीईआरटी को पहला प्रेफरेंस में रखेंगे, उसके बाद में आप बहुत सारे सैंपल पेपर जो भी आपके पास सैंपल क्वेश्चन है उससे आप प्रिपेयर करेंगे। 2 मार्च को आपको टाइम मिलेगा, यहाँ पर आप एक चैप्टर को पकड़ लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। ये रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी में जो सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, उन डायग्राम्स को कंप्लीट करना है। जो सिंपल क्वेश्चंस आप रखें, सिंपल क्वेश्चंस को फॉलो करना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ये मुश्किल से मुश्किल आपको क्या लगेगा, ये हाफ डे में आप कंप्लीट कर लेंगे। हाफ डे कंप्लीट करने के बाद इन सबको फिर से रिवाइज करने के, क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए आपको इस दिन टाइम और मिलेगा। लास्ट जो 3 मार्च है, गेट का लास्ट गेट जो आपको मिलेगा, वहां पर एक बहुत इजी चैप्टर है जो आवर एनवायरनमेंट है। आवर एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टॉपिक्स को पढ़ लेना है, क्विक रिवीजन करना है आप लोगों को। हां, जितने चैप्टर अभी तक पढ़े उसका क्विक रिवीजन अपने आप को सेल्फ टेस्ट कर लीजिए। टाइम मैनेजमेंट पर फोकस रखिए, अपने हेल्थ पर फोकस रखिए। ये जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन आपका जो क्विक रिवीजन का जो टाइम रहेगा, ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल और बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल रह सकता है। थैंक यू स्टूडेंट, इस तरीके से आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।
4 मार्च को साइंस की परीक्षा के बाद घर आकर भोजन करें, कुछ समय विश्राम कर लें। शाम 5 बजे से आप अपनी अगली परीक्षा जो कि संस्कृत है, आपकी संस्कृत परीक्षा में समय सारणी के अनुसार 7 दिनों का अवकाश अंतराल देखने को मिलता है और वहीं आपको एसएसटी विषय के लिए मात्र 1 दिन दिया गया है। अतः आप अपने एसएसटी विषय के लिए इन 7 दिनों में से 3 दिन विभाजित कर 4 मार्च की शाम से एसएसटी विषय की तैयारी कर सकते हैं। अगले 5, 6, 7 तारीख को आप एसएसटी की तैयारी कैसे करें वो आपको रिमझिम मैम द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। आप सभी को पता है कि आपकी ये एग्जाम 27 फरवरी से शुरू हो रही है, तो एसएसटी की परीक्षा हमारी 15 मार्च को है। तो इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो आप सभी देख रहे हैं कि एसएसटी की परीक्षा 15 मार्च को है, जिसके लिए हमें 1 दिन का समय मिला है 14 मार्च को। तो इसका कैसे हम डिवाइड करें, तो वहीं पे संस्कृत की परीक्षा आपकी हो रही है 11 मार्च को, क्योंकि 4 तारीख को साइंस की परीक्षा खत्म करते हैं। तो शाम को आप आएंगे 5 बजे से आप इस एसएसटी को टाइम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 मार्च को ले लिया है, साथ में फिर 6 और 7 5th, 6th और 7th हमने एसएसटी को रिविजन करने के लिए दे दिया, क्योंकि इसके लिए हमारे पास समय नहीं है, जहाँ पे आप 8, 9, 10 संस्कृत के लिए आराम से दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ इन दिनों में आगे को प्रिपरेशन कैसे करना है। तो 4 मार्च को सबसे पहले इकोनॉमिक्स के नोट्स उठाइए, साथ में इकोनॉमिक्स के नोट्स उठाने के बाद चैप्टर 1 डेवलपमेंट, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, चैप्टर भी छोटा है, तो आप इसको शाम को 5 PM से लेकर 6 PM के बीच में कंप्लीट कर लीजिए। साथ में चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भी चैप्टर छोटा है, तो आप आराम से 6 PM to 7 PM तक इसे आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 3 मनी एंड ट्रेड। ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हमारे क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज्यादा। तो इस चैप्टर को आप 8 PM to 9 PM के बीच में अच्छे से इसकी एनसीईआरटी और नोट्स दोनों कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा 4th है ग्लोबलाइजेशन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आप 10 PM to 11 PM के बीच में आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट हमारा 4 मार्च को ही खत्म हो जा रहा है, जिससे आपके लिए हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं 5th मार्च। अब 5th मार्च के दिन हम किस पार्ट को पढ़ें, तो हिस्ट्री हमारा थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और थोड़ा सा कठिन भी लगता है पढ़ने के लिए, तो हम इसको हिस्ट्री को लेते हैं और उसके साथ में नोट्स को लेते हैं। तो चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इस पार्ट से आता है। तो इसको कैसे पढ़ें, सुबह में 4 AM से लेकर 6 AM के बीच में इस चैप्टर को आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। ये चैप्टर हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इससे 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है और साथ में 2 नंबर का मैथ का क्वेश्चन भी आता ही आता है, 100% आता है। तो इस चैप्टर को आपको 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में सुबह कंप्लीट करना है। तीसरा चैप्टर हमारा है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसके साथ आपको केस बेस्ड क्वेश्चन भी करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम 9 AM to 11 AM के बीच में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम ले लेते हैं सिंगल इंपॉर्टेंट, जो इस चैप्टर को 1 PM से लेकर 3 PM के बीच में कंप्लीट करेंगे। आप देखते हैं कि हर चैप्टर के लिए आपके पास 2-2 घंटे का समय दिया गया है, तो जिस चैप्टर को आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है उसके सामने मैंने डबल टिक मारी। तो इस चैप्टर को आप 1 से 3 के बीच में कंप्लीट कर लीजिए। चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर, ये भी आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसे आप 3 PM से 5 PM के बीच में कंप्लीट कर लीजिए। ये आपका हिस्ट्री का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। बीच बीच में आपको ब्रेक भी दिया गया है। अब आपको क्या करना है, आगे 5 बजे के आगे, तो उसके साथ में आप 6 बजे से 8 बजे तक आप सारे केस बेस्ड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर वाइज केस बेस्ड क्वेश्चन है मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दूँ, उसको कंप्लीट कर लीजिए। 8 से 9 के बीच में आप रेस्ट कर लीजिए, खाना खा लीजिए। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक
इजी वाला पार्ट लेते हैं, क्योंकि हमने पिछले दिन हिस्ट्री को लिया था जो कि लेंथी होता है। तो जियोग्राफी हमें स्टार्ट करना है, तो इसके साथ हमारे पास नोट्स भी होने चाहिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप मेरे पास से ले सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर सकती हूँ। यहाँ पे चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अगेन ये चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1 से 2 ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसके साथ 4 से 6 के बीच में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, साथ में एनसीईआरटी बुकलेट भी कंप्लीट कर लीजिए। चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इस चैप्टर को आपको कब पढ़ना है? 7 AM से लेकर 9 AM के बीच में 2 घंटे में इस चैप्टर को भी आप कंप्लीट कर लीजिए। वाटर रिसोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके सामने मैं टिक मार के जा रही हूँ। तो वाटर रिसोर्स को आपको 9 AM से लेकर 10-11 AM तक इस चैप्टर को अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे पोर्ट्स के सारे क्वेश्चन बनते हैं मैथ पे, तो इसके साथ आपको मैथ के क्वेश्चन भी करना है। नेक्स्ट हमारा आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का सारा पार्ट नहीं लिया गया है, सारे कुछ पार्ट यहाँ पे डिलीट हो गए हैं, तो बहुत छोटा सा ही पार्ट हमें करना है, वो आप जान रहे हैं, क्लास में भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस चैप्टर को आप 11 AM to 12 noon तक कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है फिजिक्स अलाइड चैप्टर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मिनरल्स एंड एनर्जी। इससे भी आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, प्लस मैप बनता है कि कौन से मिनरल कहाँ पे लोकेट होते हैं, वो क्वेश्चन मैप में पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को भी आपको बहुत अच्छे से करना है। यहाँ पे मैंने 2 घंटे का समय दिया है, 1 PM से लेकर 3 PM तक अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी कुछ पार्ट हमारे यहाँ पे डिडक्ट हुआ है, उसको छोड़कर आप इस बाकी को पढ़िए 3 PM to 5 PM, ये आपका कंप्लीट हो गया। साथ में आपको केस बेस्ड भी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर 7 लाइफ साइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अब ये चैप्टर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को आपको कब करना है? 5 PM to 7 PM के बीच में इस चैप्टर को अच्छे से 2 घंटे में कंप्लीट कर लीजिए। अब हमारा समय आता है 7 से 8, तो मैंने आपको फ्री रखी हूँ यहाँ पे 8 PM से लेकर 11 PM तक। दिन भर हमने क्या पढ़ा है उसका पूरा आपको एक बार अच्छे से देखकर रिविजन करना है, और साथ में इसके एनसीईआरटी की बुकलेट भी रखनी है। अब हम जाते हैं दूसरे दिन 7 मार्च के दिन, क्योंकि हमारा 6 मार्च को जियोग्राफी का पार्ट कंप्लीट हो गया। 7 मार्च को हम क्या करें? 7 मार्च को हम यहाँ पे सिविक्स लेते हैं। सिविक्स पढ़ना है तो साथ में एनसीईआरटी की बुक और आपका नोट्स, ये दोनों होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला चैप्टर हमारा पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन भी आता है, प्लस एक केस बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है। 100% आपका एक क्वेश्चन और एक केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का होता है। दूसरा हमारा है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म से भी 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आप 8 AM से लेकर 10 AM से लेकर 12 noon तक कंप्लीट कर लीजिए। तीसरा हमारा चैप्टर है जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट। ये भी चैप्टर हमारा उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को हमें कब पढ़ना है? इस चैप्टर को आपको पढ़ना है यहाँ पे 1 PM से लेकर 3 PM के बीच में इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है, अगर एलाइड क्वेश्चंस अगर यहाँ पे देखते हैं, एलाइड चैप्टर देखते हैं, तो वो है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी से 5 नंबर का एक क्वेश्चन 100% आता है। तो इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से हर कीवर्ड्स को आपको पढ़ना है। ये कब पढ़ें? फिर ये आप पढ़ेंगे 5:30 से लेकर 7:30 तक के बीच में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को आप यहाँ पे 8 से लेकर 9 के बीच में कंप्लीट कर लीजिए, और 9 से 11 के बीच में जितना आपने यहाँ पे पढ़ा है उसका रिविजन कर लीजिए। तो ये आपका 7 मार्च तक सिविक्स का कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं 4, 5, 6 और 7 इसका हमने समय का उपयोग करके एसएसटी को हमने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि एसएसटी के लिए बस आपका प्रिपरेशन 1 दिन का मिला था। तो हमने संस्कृत का पार्ट यहाँ पे उठाकर उनके दिनों में इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल जो प्रिपरेशन डेट हमें मिला है, दैट इज द 14 मार्च, क्योंकि 15 को आपका एसएसटी का एग्जाम है। तो हम आते हैं 13 मार्च, क्योंकि 13 मार्च आपको आप आईटी का परीक्षा देकर आते हैं, वहां शाम के समय से 5 बजे के 8 बजे के बीच में आप उस दिन बस सिर्फ मैथ बेस्ड क्वेश्चन ही करें और कुछ नहीं करें। 5 PM to 8 PM के बीच में मैथ बेस्ड क्वेश्चन करना है, क्योंकि 5
5 नंबर का ही आता है जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आता है। हमने हर एक के बीच में इसका प्रैक्टिस लिया है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, इसका टेंशन खत्म। 9 PM से 11 PM तक क्या करें? अब 9 PM से 11 PM तक हमें क्या करना है? ओसवाल और एडवोकेट के सैंपल पेपर्स देखना है और कुछ नहीं। अगर हमने प्रीवियस दिनों में सारे रिविजन किए हैं तो इसका अगर हम सैंपल पेपर कर लेते हैं तो आपकी तैयारी 100% कवर हो जाएगी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया 13 तारीख के शाम से। अब 14 तारीख का जो हमारा प्रिपरेशन यूनिट मिला है SST के लिए, उस दिन आपको क्या करना है? NCERT की बुकलेट लेनी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स, बस इनको पढ़ना है और रिविजन करना है। इसके साथ आपका SST का प्रिपरेशन 100% कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस तरीके से टाइम टेबल अगर फॉलो करते हैं तो 99% आपका स्कोर आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर भी आपको कहीं कुछ लगता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। 8 मार्च को होली है। इस त्यौहार को मनाने में आप अपना अमूल्य समय नष्ट मत कीजिए। दोपहर 12 या 1 बजे तक आप त्यौहार का समापन कर भोजन कर लें। तत्पश्चात आप कुछ समय विश्राम कर शाम 5 बजे से अपनी संस्कृत की तैयारी शुरू कर दें। दिनांक 8, 9, 10 मार्च को संस्कृत की तैयारी कैसे करें वो आपको विशेश्वर सर बताएंगे। आप सभी का यहाँ पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आगे चलकर आप लोगों के लिए पूरे साल भर का जो एक मीठा पल परिश्रम के पश्चात जो प्राप्त होने वाला है उसे खाने के लिए या फिर उसको और अच्छे बेहतर रूप में बनाने के लिए आप सभी, मैं आशा करता हूँ कि परिश्रम में जी जान लगाकर खड़े हुए हैं। मैं विशेश्वर शर्मा, आपका विषय अध्यापक, संस्कृत आपको अध्यापित करवाता हूँ मैं। तो इसी निमित्त आज मेरा सबके सामने यहाँ पे आना हुआ है कि परीक्षा से पूर्व जो 3 दिन का आपके पास समय होगा उसका उपयोग आप संस्कृत के इन पूरे चैप्टर के ऊपर, पाठ के ऊपर कैसे आसानी से दें। बिल्कुल समय न लेते हुए मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। आप सभी को पता होगा, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी सिलेबस की पुस्तक में ये जो 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 3, 10 और 11, ध्यान रखिएगा, चैप्टर 3, 10 और 11, ये 3 चैप्टर का आपको किसी भी प्रकार से अध्यापन नहीं करना है, इससे बचिएगा क्योंकि आपका इसमें समय वेस्ट होगा। इसके पश्चात मैं पूरे रूपरेखा को यहाँ बताना चाहता हूँ कि आपका जो परीक्षा है 11 मार्च को है, 11 मार्च को आपकी परीक्षा है और ये तैयारी जो है 8, 9 और 10 तारीख के लिए बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों के ऊपर। तो सबसे पहले बेटा ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 तारीख का जो समय होगा उस 8 तारीख के समय में आपने जो P1, P2 और P3 का जो पेपर दे रखा है, मैं चाहता हूं इसको स्पष्टता पूर्वक इसके जो आंसर आपने लिखे हैं, आपको इस प्रकार का मार्गदर्शन दिया गया है, इस आधार पर आप इन सारे विषय प्रश्नों को देखने का और बनाने का प्रयास करिएगा। इसके पश्चात इसी दिन ये आपका जो समय रहेगा, सुबह 4 बजे आपको उठ जाना है और 7 बजे तक आपको इन तीनों P1, P2 और P3 को पूरी तरह से अच्छे रूप से मन में लाना है और इनका अभ्यास आपको करना है। इसके पश्चात आप चैप्टर 1 का प्रारंभ करेंगे। सूची पर्यावरण नामक पाठ है आपका और ये जो टाइम है बीच में होली है तो जोड़ा गया है, तो 3 बजे से लेकर आपको 5 बजे तक, 2 घंटे में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक में आपको ये पहला चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। उसके पश्चात देखिए दूसरा चैप्टर बुद्धिर बलवती सदा, ये दूसरा चैप्टर है, इसके लिए आपको 5 से 7 बजे तक, ये आपके शाम के समय है, 5 से 7 बजे तक 2 घंटा दीजिएगा इसको, आराम से ये पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। उसके बाद है आपका चैप्टर 4 अर्थात अध्याय 4 शिशु लालनम। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे 1 घंटे का रेस्ट दिया जा रहा है ताकि आप
अपने मन को अच्छा कर लें, है ना, जो कुछ अच्छा लगता है आपको खा पी लें थोड़ा सा, फिर आप पुनः अध्यापन के लिए आप बैठ जाइए। चैप्टर 4 शिशु लालन 8 से 10 बजे तक आपको रात को ये करना ही करना है। उसके पश्चात जो 1 घंटा का समय, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, 1 घंटा का समय और दीजिएगा। जो ये आपने पढ़ा है क्या हमको अच्छे से आ रहे हैं या फिर ऐसा कोई चैप्टर इसमें लग रहा है जो भूल रहे हैं, तो थोड़ा सा 1 घंटा उसको भी आप वहां पे दे दीजिएगा। अब हम अगले दिन चलते हैं 9 मार्च को। 9 मार्च का दिन और आपके लिए पूरा दिन भरा हुआ होने वाला है। तो सबसे पहले चैप्टर 5 आपका जो पाठ का नाम है जननी तुल्य वत्सला। जननी तुल्य वत्सला, इस पाठ की पढ़ाई आपको ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाना है और 4 से 7 बजे तक 3 घंटा, क्योंकि यही समय आपके लिए सर्वोत्तम माना गया है। फिर उसके पश्चात है चैप्टर 6 जो पाठ का नाम है सुभाषितानी। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ये आपको 2 घंटे में सुभाषितानी में श्लोकों को याद करना है, श्लोकों के भावार्थ को याद करना है, अन्वय लिखना है। इसके पश्चात 7वां नंबर पे 7वां चैप्टर सौहार्द प्रकृति शोभा, की प्रकृति की शोभा का वर्णन है और आपको 10 बजे से सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक इसमें भी आपको 2 घंटे का समय देना है। उसके पश्चात है विचित्र साक्षी, आपको यहाँ 1 घंटे छोड़ा जा रहा है। 1 बजे से लेकर आपको 3 बजे तक आपको विचित्र साक्षी पाठ का अवलोकन करना है। समस्त प्रश्नोत्तर को ध्यान से बारीकी से आपको पढ़ना है। उसके पश्चात है आपका सुक्तयः पाठ। सुक्तयः में आप सभी ने देखा ही होगा, अच्छे अच्छे श्लोकों का भरमार है और जीवन प्रेरणा से वो श्लोकों का यहाँ पे संकलन किया गया है। और मेरे दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो ये जो सुक्तः आपका पाठ है, ये सुभाषितानी पाठ है, ये दोनों चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दिशा निर्देश पहले मैंने आपको करा था, उसी दिशा निर्देश के अनुसार आप चलने का प्रयास करिएगा, है ना। अब आगे आते हैं, यहाँ पे 10 तारीख को रुक करते हैं। 10 तारीख में सबसे वही दिनचर्या आपकी बनने वाली है, कैलेंडर के अनुसार वही दिनचर्या के आपसे आगे बढ़ना है। तो चैप्टर 12 यहाँ पे अंतिम चैप्टर 7 पाठ का ये अन्योदय पाठ है। यह भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण पाठ है और इसका तैयारी में आपको ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाना है और 7 बजे तक आपको करना ही करना है। सबसे इंपॉर्टेंट श्लोकों में क्या देखिएगा, जो 4 लाइन वाले 4 पदों में जो श्लोक होंगे उनका तैयारी जरा प्रयास करिएगा करने का। उसके बाद आपको पूरा का पूरा ये 10 तारीख जो है और भी बोझिल होने वाला है। बोझिल मतलब परिश्रम से भरा हुआ, ऐसा नहीं कि स्ट्रेस लेकर पढ़ाई करना है हमको, परिश्रम करना है हमको। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका जो ग्रामर का पोर्शन होता है वह है आपका अपठित अबोधनम। इसमें आपके लिए जो आंशिक कायदे होते हैं ये दिए होंगे और ये आपको बता देना चाहता हूं मैं कि ये प्रश्न जो प्रारूप है ये देश के किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है। चाहे आपका वर्तमान में कोई दुर्घटना हुआ हो, कोई त्रासदी हुआ हो, तो कोई प्राचीन तथ्य हो, इस समस्त विषयों से संबंधित यह अपठित अबोधन आपके सामने 10 नंबर का प्रस्तुत किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। इससे मैं प्रश्न के आधार कैसे होंगे, 4 प्रश्न होंगे। आपका पहला होगा अति लघुत्तर अर्थात 1 पदे पूर्ण वाक्य, दूसरा प्रश्न होगा पूर्ण वाक्य में, तीसरा है आपका शीर्षकम के रूप में पूरे अंतिम पेज का एक शीर्षक लिखना है 1 पद में, और उसके बाद भाषिक कार्य में यहाँ पे 3 नंबर टोटल अगर मिला दें तो 10 नंबर का यह सबसे महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बनता है। और इसको आपको किसी भी हालत में सोच समझदारी पूर्वक धैर्य रखकर, है ना, पैसेंस रखना है। कम से कम अपठित बोधन को 2 बार पढ़ना है। ध्यान दीजिए मेरी बातों को, आप लोग हड़बड़ी करते हैं, 2 बार कम से कम इसको बढ़िया से पढ़ना है। उसके पश्चात आपको इसको हल करना है। उसके पश्चात आपका रचनात्मक कार्य है। रचनात्मक कार्य में 15 का पूछा जाता है सीबीएसई में। तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न सम्मिलित होते हैं। पहला होता है पत्र लेखन, अनौपचारिक भी हो सकता है, औपचारिक भी हो सकता है। तो यह 5 अंक का होता है। ये क्वेश्चन आपको मंजूषा के रूप में पूछे जाएंगे। मंजूषा जो आपको दिए रहेंगे 10 पदों के रूप में, उन पदों का आप अपने बुद्धि विवेक अनुसार उसका प्रयोग करोगे, उसका शब्दार्थ समझोगे और खाली स्थान में मंजूषा के रूप में भरोगे। उसके पश्चात है आपका चित्र वर्णन। चित्र
चित्र वर्णन संबंधित पाठ से ही होंगे। हो सकता है गणतंत्र दिवस का हो, 15 अगस्त का हो, या किसी विशेष पर्व का हो, या फिर किसी बाग बगीचे का हो, उद्यान का हो, तो ये चित्र वर्णन के विषय वस्तु हो सकते हैं और आसानी से आप छोटे छोटे शब्दों में इसके आंसर को देने का, उत्तर को देने का प्रयास करिएगा। ज्यादा बड़े शब्दों को लिखने का, वाक्यों को लिखने का प्रयास न करिएगा, इससे बचिएगा। उसके पश्चात अनुच्छेद लेखनम, इसी चित्र वर्णन का अथवा एक क्वेश्चन बनता है अनुच्छेद लेखनम। कहीं कहीं पाया गया है कि चित्र वर्णन से कहीं कहीं पर यह अनुच्छेद लेखन का जो कार्य होता है अत्यंत ही सरल होता है, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा और प्रयास करिएगा। 15 अंक का यह आपका रचनात्मक कार्य है। उसके पश्चात है आपका अनुप्रयुक्त व्याकरण। ये पूरे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 खंड में मैंने यहाँ बांटा हुआ है ना। तो इसका तैयारी आपको 5 से 8 बजे रात 3 घंटा बढ़ाया गया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें संधि है, समास है, प्रत्यय है, वाच्य है, समय लेखन है, अव्यय पद है और संशोधन कार्य है। इन व्याकरणों के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके लिए क्या करना है आपको, बहुत सारे उदाहरण आपको बताए गए हैं। समय लेखन के लिए बताना चाहूंगा, ये 4 नंबर जो है मैं चाहता हूं आप किसी भी बच्चे का न कटे, क्योंकि सबसे सरल अगर इस चैप्टर में लिखा जाए, पूरे पाठ्य पुस्तक में लिखा जाए, तो समय लेखन का 4 नंबर का आपका बनता है और ये कटने ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इन सारे विषयों के ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 25 अंक का पूछा जाएगा आपको, और अंतिम में जो पूरा का पूरा आपको ये पोर्शन बताया ये 30 नंबर का उसी पुस्तक से पूछा जाना है। इस आधार पर तो देखा जाए आने वाला जो समय है इस प्रकार से आप तैयारी करते हो तो आपके लिए अच्छा ही होगा। आप सबका मैं दिल से आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाला जितने भी आपका पेपर है अच्छे से बने। बहुत बहुत धन्यवाद। मार्च को संस्कृत की परीक्षा देने के बाद घर आकर भोजन और विश्राम कर लें। 5 बजे से आप पुनः अपनी आईटी की परीक्षा की तैयारी करें। उसी प्रकार 13 मार्च आईटी की परीक्षा देने पश्चात घर आकर भोजन करें और कुछ देर विश्राम कर 5 बजे से एसएसटी की परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, जो कि 15 मार्च को है। एसएसटी के लिए मात्र 1 दिन ही आपके पास है, पर क्योंकि हमने संस्कृत विषय के अवकाश के दिनों में से दिनों को लिया था, 15 मार्च को एसएसटी परीक्षा के बाद पुनः घर आकर भोजन और विश्राम करने के बाद आप अपनी अगली परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। शाम 5 बजे से शुरू कर दें। आपकी मैथ्स की परीक्षा 21 मार्च को होनी है, जिसके लिए आपको 5 दिनों का अवकाश मिल रहा है। इन 5 दिनों में आपको मैथ्स की परीक्षा की तैयारी कैसे करना है यह आपको विजय सर बताएंगे। Morning students, I am Vijay Sahu giving the preparation strategy for the class 10 CBSE subject maths. Students, जैसा आपको पता है आपका एग्जाम डेट है 21 मार्च मैथ्स, है ना, और आपको प्रिपरेशन सिर्फ मिले हुए हैं 16, 17, 18, 19 एंड 20 मीन्स टोटल 5 डेज। इन 5 डेज का आप यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं एक स्ट्रेटेजी मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिए, है ना। देखिए फर्स्ट एग्जाम में बिफोर एग्जाम से आपका 15 मार्क्स एसएसटी सब्जेक्ट 2 से 3 आवर्स मीन्स 2-3 PM तक आप घर आ जाएंगे, है ना। मीन्स आपके पास आफ्टरनून में सफिशिएंट टाइम है रेस्ट करने का, आप आफ्टरनून बहुत अच्छे से रेस्ट ले पाएंगे। देन 15 मार्च 4 आवर्स का आप टाइम दीजिए, टाइम 6 to 9 एंड 10 to 11 मीन्स टोटल 4 आवर। इन 4 आवर्स में आपको CPQ क्वेश्चंस मींस केस बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे प्रिपरेशंस करने हैं, प्लस P1, P2, P3 एंड P4 इनके जो एग्जाम्स हुए थे इन सारे क्वेश्चंस पेपर को इन 4 आवर्स में अच्छे से एक प्रिपेयर कर लीजिए। आपका ये शॉर्ट एक रिवाइज हो जाएगा। मेन प्रिपरेशंस जो स्टार्ट करने हैं आपको, फर्स्ट प्रिपरेशन 16 मार्च से आप कीजिए। अब ये कैसे कर सकते हैं, देखिए 16 मार्च को आप 3 चैप्टर्स का एक शेड्यूल बना लीजिए। एक है यूनिट नंबर 1 नंबर सिस्टम, यूनिट नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड यूनिट नंबर 7 स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपको रियल नंबर, कोऑर्डिनेट और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये 3 चैप्टर को कवर कर सकते हैं। क्यों, ये बहुत इजी यूनिट है और इसमें मार्क्स देखिए 6 मार्क्स के हैं, नंबर सिस्टम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 6 मार्क्स के, स्टैटिस्टिक्स है 11 मार्क्स। मींस इन 3 चैप्टर से टोटल आपका बन रहा है 23 मार्क्स की क्वेश्चन।
इसका प्लानिंग आप लोग 3 आवर्स 3 आवर्स और 3 आवर्स कुछ ऐसे कर सकते हैं। जैसे टाइमिंग डिवाइडेड है, मॉर्निंग में 8 से 11 का टाइम ले लीजिए, आफ्टरनून में 12 से 3, इवनिंग में 5 to 8। इसके बाद में आपके पास 3 आवर्स का टाइम नाइट में बच रहा है, तो वो रेस्ट टाइम आप इन्हीं 3 चैप्टर्स का एक रिवाइज कर सकते हैं। ये हो गया आपका 16 मार्च। नेक्स्ट आता है आपका 17 मार्च। इन 17 मार्च में एलजेब्रा, जियोमेट्री, ये 2 चैप्टर्स हैं। एलजेब्रा में आपके टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं, जैसे पॉलिनोमियल्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और एपी सीरीज है ना। तो इन सारे चैप्टर्स का टोटल मार्क्स बनते हैं 20 मार्क्स, और इस 20 मार्क्स के लिए आप 6 आवर्स का टाइम दीजिए, है ना, जिसको आप मॉर्निंग और आफ्टरनून इन 2 टाइमिंग में इजिली कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये ज्यादा बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट जियोमेट्री पार्ट में 2 चैप्टर्स हैं, एक ट्रायंगल्स एंड सेकंड सर्कल्स। तो इसको आप 15 मार्क्स के जो ये क्वेश्चंस आएंगे जियोमेट्री से, इसको भी आप 6 आवर्स का टाइम दे सकते हैं, है ना। ये जैसे हो गया आपका इवनिंग में 5 to 7 एंड नाइट में 8 to 11। बहुत इजीली तरीके से ये टोटल आपका 35 मार्क्स 1 डे में कंप्लीट हो सकते हैं, है ना। और इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप एनसीईआरटी से भी प्रैक्टिस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। नेक्स्ट आगे मैं ये बताऊंगा कि आपको नेक्स्ट कौन से बुक प्रिफर करने हैं इसके लिए, है ना। अभी इन चीजों को एनसीईआरटी से 17 देन आता है 18 मार्च। 18 मार्च आप प्रिपरेशन कर सकते हैं 2 यूनिट्स। यूनिट नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्री एंड यूनिट नंबर 6 मेंसुरेशन। ट्रिग्नोमेट्री में 2 पार्ट्स हैं, एक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सेकेंड हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत इजी यूनिट है और बहुत शॉर्ट यूनिट है ये, है ना, जिसमें से टोटल जो मार्क्स बन रहे हैं वो है 12 मार्क्स ओनली फॉर ट्रिग्नोमेट्री, है ना। और ये आप मॉर्निंग और आफ्टरनून मींस 3 to 3 6 आवर्स 6 आवर्स में बहुत इजीली आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मेंसुरेशंस। मेंसुरेशंस में भी 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरिया टू एंड वॉल्यूम, जिसको भी आप टोटल देखें तो 10 मार्क्स है ना। और इन दोनों का टोटल यानी ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन से आपका टोटल मार्क्स बन रहा है 22 मार्क्स। इन दोनों यूनिट को आप 18 मार्क्स को कवर कर लीजिए, है ना। जैसे मेंसुरेशन के लिए आप इवनिंग का टाइम ले सकते हैं 4 to 7 एंड 8 to 11, है ना, मींस टोटल 6 आवर ये हो गया। तो ये बहुत इजीली तरीके से 18 मार्क्स को इजीली आप कवर कर सकते हैं। देखिए 18 मार्क्स तक आपका पूरा चैप्टर्स और पूरा यूनिट कवर हो चुका है। इसके बाद भी आपका 2 डेज 19 एंड 20 अभी भी बच रहे हैं प्रिपरेशन स्लिप के लिए। इस 19 एंड 20 को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ आपके पास ईडू कार्ड, अरिहंत और ओसवाल्स। इन ईडू कार्ड, अरिहंत और ओसवाल्स में मॉडल पेपर सेट्स दिए हुए हैं। इन सारे मॉडल पेपर सेट्स का प्रिपरेशन आप 19 और 20 मार्क्स को कीजिए, ज्यादा बेटर है। प्लस इसके अलावा आप लोग एक काम और कीजिए कि एक सेपरेट कॉपी बनाइए पतली सी, है ना, जिसमें जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाएंगे चैप्टर्स के जो फार्मूला यूज होते जाएगा उन सारे फार्मूला को एक अलग कॉपी पे नोट करते जाएं। ये सारा रिविजन और फार्मूला कॉपी आपको लास्ट टाइम में काम आएगी। जब बिफोर 1 आवर्स 2 आवर्स जब आप एग्जाम दिलाने जाते हैं तो फार्मूला कॉपी का एक शॉर्ट देख के जा सकते हैं। तो फार्मूला का एक अलग कॉपी रखें पतली सी, और वो हर एक चैप्टर वाइज उसको नोट डाउन करें। तो इस टाइप से आप अपना सारा प्रिपरेशन इजिली कर सकते हैं और अपने इन प्रिपरेशन स्लिप का यूटिलाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, आशा करते हैं आप सभी हमारे बताए गए मार्गदर्शन को अपनाकर सभी विषयों में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। आपको एक जानकारी होगी, दिनांक 8 मार्च को होली का त्यौहार का आगमन हो रहा है, जो आपके परीक्षा के दौरान आपको भटका सकता है। आप सभी से हम आशा करते हैं कि आप अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे और कम से कम समय इस त्यौहार के लिए देंगे। जहां तक हो आप सुखी होली खेलने का प्रयास करें ताकि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा और सही रहे।